قابض بھارتی فوج سید علی گیلانی کے جنازے سے بھی خوفزدہ. بھارتی اہلکار علی گیلانی کی میت ان کے گھر سے زبردستی لے گئے. اہل خانہ چیخ پکار کرتے رہے. قابض بھارتی فوج نے علی گیلانی کے اہل خانہ پر تشدد کیا, انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا. گھر والوں نے علی گیلانی کی میت پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں لپیٹ رکھی تھی. بھارتی فوج نے رات کے اندھیرے میں حیدرپورہ قبرستان میں علی گیلانی کی تدفین کر دی. احتجاج روکنے کے لیے پورے کشمیر کو بند کر دیا گیا. سخت کرفیو, مواصلاتی بلیک آؤٹ. علی گیلانی کی رہائش گاہ سری نگر حیدرپورہ میں بھارتی فوجیوں پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات. سید علی گیلانی کی رہائش گاہ پر صحافیوں کے جانے پر پابندی. سری نگر میں سڑکوں پر خاردار تاریں اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں. طویل عرصے سے گھر میں نظر بند حریت رہنما سید علی گیلانی 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف شہروں میں سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ. پارلیمنٹ ہاؤس کے سبزہ زار میں سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی. صدر عارف الوی, چیئرمین سینٹ, وفاقی وزراء, آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم نے شرکت کی. پاکستان میں علی گیلانی کے انتقال پر سوگ, تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں. صدر عارف الوی نے کہا کہ سید علی گیلانی کی تدفین اندھیرے میں کر کے بھارت کی قابض سرکار اپنے ملک میں آگ کو ہوا دے رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سید علی گیلانی کے یہ الفاظ ہمیں یاد رہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. سید علی گیلانی کی وفات پر آزاد کشمیر میں 3 روزہ سوگ, ریاستی پرچم سرنگوں. منصورہ لاہور میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. نون لیگ کی حکومت سے 3 گنا زیادہ سڑکیں بنا چکے, جو ان کے مقابلے میں سستی بھی ہیں کیونکہ اب سڑکوں پر کمیشن سے لندن میں فلیٹس نہیں بن رہے. وزیر اعظم عمران خان کے نون لیگ پر نشانے. کھانیہ موٹر وے کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب. کہا سیالکوٹ کھانیہ موٹر وے اہم منصوبہ ہے. سوات موٹر وے پر عید کے دن 27 لاکھ گاڑیوں نے سفر کیا. حکومت سیاحت اور صنعت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. وزیر اعظم نے لاہور اسلام آباد موٹر وے کو غلط قرار دیا. کہا آج تک سمجھ نہیں آئی موٹر وے 100 کلومیٹر اضافی کیوں بنائی. وزیر داخلہ شیخ رشید نے قومی حکومت کا امکان مسترد کر دیا. کہا قومی مفاہمت کے لیے تیار ہیں. قومی حکومت خواب ہے جس کی تعبیر الٹی نکلے گی. ایسا وقت آنے والا ہے کہ اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنا پڑے گی. یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں, کسی قیمت پر ملک میں انتشار کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وزیر داخلہ نے بتایا کہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر چمن بارڈر عارضی طور پر بند کیا جا رہا ہے. افغانستان سے آنے والا کوئی امریکی پاکستان میں نہیں ہے. جو آئے تھے چلے گئے. را اور این ڈی ایس کا ستیہ ناس ہو گیا ہے. چہرے لٹک گئے ہیں. جیو نیوز کی خبر پر کراچی میں ڈی آئی جی ویسٹ کا ایکشن. منشیات, گٹکا فروشوں اور غیر قانونی ہائیڈرنٹس کی سرپرستی کرنے والے 3 ایس ایچ اوز کو معطل کر دیا گیا. معطل کیے جانے والوں میں ایس ایچ او ناظم آباد, سپر مارکیٹ اور ایس ایچ او گلبہار شامل ہیں. اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں کراچی میں منشیات کے 363 اڈے پولیس کی سرپرستی میں چلائے جانے کا انکشاف کیا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ 100 سے زیادہ ڈی ایس پیز, ایس ایچ اوز اور سب انسپیکٹر سے لے کر نیچے تک کے اہلکار آنکھیں بند رکھتے ہیں. چرس, ہیروئن, افیون اور آئس بیچنے والوں سے بھتہ لیتے ہیں. لاہور میں مینار پاکستان پر اکیلی لڑکی کو بے لباس کرنے اور ہراساں کرنے کے کیس میں متاثرہ لڑکی نے 6 ملزمان کو شناخت کر لیا. بتایا ہے کہ افتخار نے اس کے کپڑے پھاڑے, ارسلان نے تشدد کیا, شہریار نے دھکے دے کر جنگلے سے مارا, مہران نے تشدد کا نشانہ بنایا, عابد نے سیلفیاں لیں, غلط حرکات کیں. لڑکی نے بتایا کہ ملزم ساجد نے دیگر لڑکوں کو اکسایا. متاثرہ لڑکی نے کل 10 ملزموں کی نشاندہی کی. ان میں سے 4 جیل کے قیدی تھے جو 6 مہینے سے جیل میں ہیں. اسلام آباد کے ایک پارک میں 14 اگست کو کینیا کی ڈپٹی ہائی کمشنر کے ساتھ بدسلوکی کا انکشاف. سینیٹر مشاہد حسین سید نے انسانی حقوق کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ کینیا کی ڈپٹی ہائی کمشنر نے انہیں بتایا کہ 14 اگست کو لیک ویو پارک میں ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی. لوگوں نے بال نوچے اور ہاتھا پائی کی. چیئرمین انسانی حقوق کمیٹی نے کہا کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے, اسے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. ایس پی سٹی کا کہنا ہے کہ کینیا کے ہائی کمیشن اور متعلقہ خاتون کی جانب سے اب تک رابطہ نہیں کیا گیا. واقعے کی مکمل تحقیقات کرائیں گے.
पंजाब हुकूमत औरतों के लिए बेहतर माहौल बनाए, पाबंदियां न लगाए। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी की पाक्स में औरतों के दाखिले के औकात मुकर्रर करने पर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। औरतों की बजाय नौजवानों के दाखिले पर पाबंदी लगाने का मशवरा। सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी में कहा कि पार्कों में औरतों के लिए वक्त का तयन ताज्जुब वाली बात है। चेयरमैन कमेटी ने शीरी मजारी से कहा कि इंसानी हुकूक के मामले पर पंजाब हुकूमत से बात करें। शीरी मजारी बोली, हम पंजाब हुकूमत को सिफारिशात भेज सकते हैं, दबाव नहीं डाल सकते। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, उस्मान बुज़दार तो कठपुतली हैं, सब कुछ तो वजीर आज़म चला रहे हैं। शीरी मजारी ने जवाब दिया, ये हम नहीं आप कहते हैं। अफगानिस्तान में शिमाली इत्तेहाद और तालिबान जंगजुओं के दरमियान पंजशेर में झड़पें। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि मुकामी मुसल्लह गिरोह से मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन शुरू किया गया। तालिबान पंजशेर में दाखिल हो गए हैं, कुछ इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। तर्जुमान शिमाली मुजाहमती इत्तेहाद का कहना है कि पंजशेर की तमाम गुजरगाहों और दाखिली रास्तों पर उनका कंट्रोल है। पंजशेर में जिला शटल पर कब्जे की कोशिश करने वालों को पीछे धकेल दिया। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। लाहौर में जिले इंतजामिया ने भिखारियों को भी वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया। पहले दिन 27 भिखारियों को शनाख्ती कार्ड और कोड के इंदराज के बाद वैक्सीन लगाई गई। लाहौर के एक्सपो सेंटर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए फीस के एवज बूस्टर डोज लगाने का अमल शुरू। सिस्टम अपग्रेड न होने से 17 साल के नौजवान को वैक्सीन लगाने का आगाज न हो सका। एक्सपो सेंटर में मॉडर्ना वैक्सीन खत्म। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 6.5% रिपोर्ट। 89 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में 8.6, फैसलाबाद में 12, मुल्तान में 11, रावलपिंडी में 10.5% शरह रिकॉर्ड की गई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद कोरोना में मुब्तला, घर में करंटीना हो गए। पंजाब कोरोना फंड में 15 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत के हुकाम ने 1.5 अरब रुपए की गैर जरूरी कोरोना दवाएं खरीदी। 50 करोड़ के फंड्स कमेटी की इजाजत के बगैर खर्च किए। मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया ने 23 करोड़ रुपए की महंगी अद्वियात खरीदी। 61 करोड़ की दवाइयों के ठेके खिलाफे कानून चंद मुंतखब कंपनीज को दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी के मर्तकब उम्मीदवारों को नोटिस जारी। उम्मीदवार 2 लाख रुपए से जायद रकम इंतखाबी मुहिम पर खर्च नहीं कर सकेंगे। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती का केस। गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक ने पुलिस को बताया कि दोनों लड़कियों को डांस पार्टी के लिए शादरा से बुलाया। पैसों के मामले पर झगड़ा हो गया तो लड़कियों ने ज्यादती का इल्जाम लगा दिया। लड़कियों को रात 2 बजे वापस छोड़ना था, लेकिन सुबह 7 बजे घर पहुंचाया। जाली आईडी बनाकर स्पेशल ब्रांच के नाम पर भर्ती का लालच देने वाला फ्रॉडिया पकड़ा गया। हैदराबाद में एफआईए साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। बदीन का रिहायशी 17 साला नौजवान गिरफ्तार। एफआईए के मुताबिक मुलजिम ने फेसबुक पर एएसपी सिटी हैदराबाद अलीना राजपर के नाम से आईडी बना रखी थी। सीक्रेट ब्रांच और क्राइम ब्रांच के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे थे। चीफ सेक्रेटरी के नाम से जाली ऑर्डर भी इस ग्रुप में भेजे जाते और ग्रुप में शामिल लोगों को मरऊब किया जाता। शिकायत कुनंदा एएसपी अलीना राजपर का कहना है कि एफआईए को पता लगाना चाहिए कि मुलजिम ने कितने पैसे ऐंठे, सिम किसके नाम से खरीदी और ये पेज किसकी ईमा पर बनाया गया। रावलपिंडी में मदरसे की तालिबा से मुबैना ज्यादती और तशद्दुद का केस। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम मुफ्ती शाहनवाज का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। कराची में दिन भर गर्मी, हब्स के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, लेकिन बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने कराची में 4 सितंबर तक बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला अताउल्लाह मेंगल मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए। अताउल्लाह मेंगल 1 हफ्ते से मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अताउल्लाह मेंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल के वालिद थे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात पर शिराकतदारों के इत्तेफाक राय के बगैर कानून साजी मंजूर नहीं। इंतखाबात का तरीका एक सियासी जमात की ख्वाहिशात पर नहीं छोड़ा जा सकता।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है हुकूमत की बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी पर ऑपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। अपने दौर में मईशत से खिलवाड़ करने वाले मुंह छुपा रहे हैं। ऑपोजिशन का वावेला चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। तिब्बी अमले की खिदमात को खातिर ख्वाह अंदाज में न सराहने पर मारूफ माहिर अमराज मेदा व जिगर डॉक्टर साद खालिद नियाज ने एहतजाजन तमग़े इम्तियाज वापस कर दिया। सदर आरिफ अलवी को खत में लिखा कि इस साल सिर्फ 2 डॉक्टर्स को सिविल अवार्ड्स दिए गए जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से था। सिविल अवार्ड्स हासिल करने वाले 124 अफराद का ताल्लुक किसी भी तरीके से शोबा तिब से नहीं था। तिब्बी अमले की खिदमात को ना सराहे जाने पर शदीद मायूसी हुई। डॉक्टर साद खालिद नियाज ने हुकूमत से कोरोना हीरोज की खिदमात के एतराफ़ की दरख्वास्त की थी। सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी ने पाकिस्तान पर अमरीका के चाइल्ड सोल्जर के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा को चाइल्ड सोल्जर के इल्जाम के बारे में खत लिखने का फैसला। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि आजकल तो हुकूमत के अमरीका से मिसाली ताल्लुकात हैं, हुकूमत ये मामला क्यों नहीं उठाती। शीरी मजारी बोली, अमरीका से हमारे ताल्लुकात इतने मिसाली हैं कि 2018 से अब तक पाकिस्तान में कोई अमरीकी सफीर ही नहीं। आमदनी 17,000, खर्च 25,000, गुजारा कैसे हो। 3 साल के दौरान कारोबारी हालात, कोरोना, महंगाई ने आम तनख्वाहदार शहरी की जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तरीन बना दिया। कराची के शहरी बाबर का महंगाई में कमी का मुतालबा। मारूफ गुलकारा नाजिया हसन के शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग ने नाजिया के भाई जुहेब हसन के खिलाफ 1 अरब रुपए के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुहेब हसन ने निजी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू में झूठे इल्जामात लगाए। वो तौहीन आमेज और हकाइक के बरक्स बातें कर रहे थे। नाजिया हसन के भाई जुहेब हसन ने इल्जाम लगाया था कि इश्तियाक बेग अपनी अहलिया नाजिया हसन से बुरा सलूक करते थे। नाजिया तलाक लेना चाहती थी। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की हुकूमती कोशिशों के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का फैसला किया है। तहरीक में सियासी और मजहबी जमातों, समाजी और मजदूर तंजीमों और सिविल सोसाइटी की हिमायत हासिल की जाएगी। KUJ के इजलास में PMDA को आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय पर नया हमला करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो इस कोशिश से बाज रहे। बसूरत दीगर मुल्क भर की सहाफ़ी बरादरी इस कानून की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान को कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करने का हक है। मुसलमान होने के नाते हक है कि कश्मीर, भारत और किसी भी मुल्क के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। हक्कानी कोई ग्रुप नहीं, वो अफगानिस्तान के इस्लामी इमारात का हिस्सा हैं। किसी भी मुल्क के खिलाफ मुसल्लह ऑपरेशन करने की कोई पॉलिसी नहीं है। अफगानिस्तान में आज से तालिबान की बारूदी सुरंगें साफ करने का मिशन बहाल। बारूदी सुरंगें साफ करने वाले इदारे हॉलो ट्रस्ट को काम करने की इजाजत। हॉलो ट्रस्ट 5 अफगान सूबों में मिशन का आगाज करेगा। ट्रस्ट ने दौरान जंग तालिबान के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में बारूदी सुरंगें साफ की थीं। अफगान तालिबान का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स अमरीकी फौजी नाकारा बनाकर गए हैं उन्हें मरम्मत करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक राब कतर पहुँच गए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। बरतानवी मीडिया का कहना है कि डोमिनिक राब तालिबान क़यादत से अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों और अफगान मुतरजमीन के महफूज इनखला से मुतालिक बात करेंगे। कोरोना वायरस की एक और नई किस्म मुंह सामने आ गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस की इस किस्म के सामने लोगों में वैक्सीनेशन या पिछले इन्फेक्शन से पैदा होने वाली क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोर पड़ जाती है। इस वक्त आलमी सतह पर कोरोना की इस किस्म के केसेस की शरह 0.1% है और या इससे भी कम। अमरीका के बाद बरतानिया का भी इंतहाई कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वालों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक लगाने का ऐलान। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में तूफान आइडा के बाद सैलाबी रेलों का राज। सबवे स्टेशन और एयरपोर्ट नदी नालों में तब्दील, सड़कें दरिया बन गई, सबवे स्टेशन बंद कर दिए गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद जान से गए। शहर में हंगामी हालत नाफिज। अमरीका की कई रियासतें समुद्री तूफान आइडा की जद में हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के कैंची से भी तेज दांत। कैंची खुंडी है तो क्या हुआ, इफ्तिताह तो होगा, जरूर होगा। फयाजुल हसन चौहान ने रावलपिंडी में दुकान का इफ्तिताह दांतों से फीता काट कर दिया।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। समातो गोयाई से महरूम नौजवान क्रिकेटर ने सबके दिल जीत लिए। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उजैर जावेद ने अपनी महारत से सबको हैरान कर दिया। कोचेस का कहना है कि उजैर जावेद में तेजी से सीखने की सलाहियत है। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आयरलैंड के खिलाफ आखिरी 7 मिनट में 2 गोल किए और पुर्तगाल को जीत दिला दी। ईरान के अली दाई का 109 गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और रगों में अंधेरे भरने वालों के खिलाफ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एक्शन में आ गया। सुपरस्टार ब्रूस विलिस की नई फिल्म सर्वाइव द गेम की झलकियां जारी। फिल्म अक्टूबर में रिलीज की जाएगी।